Okay, I have given some info about me, जो मैं लास्ट में भी दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, let's move forward. इसमें क्या क्या है? So this section assesses your awareness of current events and general knowledge across various domains. So this is not something which we can learn. Wait, this is not something which we can learn now, right? I mean, within an hour or something. ऐसा कुछ नहीं है. It is totally dependent on the habit you have of reading and how aware you are. Like, instead of, even if you are indulged in social media, how focused you are for the current events. It depends on that. अभी सब लोग, so you might know अभी current situation क्या है, you might know this thing, right? What if, like, the biggest highlight of nowadays news channel देखते हो सब लोग? You might have seen Kashmir's Yes, scenario, right? So yeah, these, Palgam. like, these type of current events you must aware of. You should not get lagged. ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए हो, कुछ ऐसे ही टाइम पास के लिए देख रहे हो. यू आर सपोज टू रीड दीज थिंग्स. अभी ये है ना, एक दिन में नहीं आता ये. दिस जनरल नॉलेज एक दिन में नहीं आएगा. यू आर सपोज टू रीड दैट. अभी 4 to 5 days है. यू आर सपोज टू चेक ऑल द इवेंट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन. ठीक है, जितना हो सके. 15 ही क्वेश्चन है, कोई टेंशन की बात नहीं है. यू हैव ओनली 15 क्वेश्चन एंड आई होप 10 क्वेश्चन तो आराम से आ ही जाएंगे आप लोग. बस जो लोग ट्रेड्स वगैरह में नहीं है, देखो, यू कैन सी एरियाज कवर्ड. करंट अफेयर्स यू माइट अवेयर ऑफ. Culture you might aware of. Trade and commerce, these things you're supposed to read. Income tax, what regime we are following right now, वो सब चीजें. Sports, scientific discoveries and so many things. Okay, मैं just overview देने वाला इस चीज का, because this is not something which we can teach. We need, like, self awareness for this. Okay, so current affairs में क्या आएगा? Major political events, who's the ruling party, who's the opposition party, international summits, G20 for example, गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी है अभी, PMY, जो भी प्रधानमंत्री, यू नो आवास योजना वगैरह एक्सेट्रा, ऐसी चीजें यू मस्ट नो. नॉट इन डिटेल बट एटलीस्ट नो व्हाट scheme is for what purpose. Okay, important appointments and awards, so Padma Shri, Padma Bhushan, these things you are supposed to know. Not all, but at least current, right? कल्चर, इंडियन फेस्टिवल, ये बताने की जरूरत नहीं है. लॉट ऑफ पीपल माइट नो अबाउट दिस थिंग. क्लासिकल एंड फोक डांसेस, इवन ये भी पता होगा सब लोगों को. लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स एंड यूनेस्को हेरिटेज साइट. सो ये चीजें ना, यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया यूजुअली. सो इसमें ज्यादा, मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. यू माइट नो दिस थिंग्स. ट्रेड्स एंड कॉमर्स. ओके, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स, important industries, international trade organizations, recent policy changes, these things. Okay, trade or organization. अभी policy changes. Do you know अभी recent scenario क्या है? That is, this country is handling. क्या हो रहा है पता है? Uh, Yes, anyone? सर जैसे चाइना अपनी जो ट्रेडिंग जो अपनी इंपोर्ट करा रही थी जो गुड्स, वो Right. यूएस से उसको हाई प्राइस में बेच रहा था. जब चाइना को पता चला तो उन्होंने मार्केट में स्पॉइल कर दिया कि इन्होंने हमारी चीजें ज्यादा प्राइस में बेच रही, हमको कम दाम में खरीद कर. Right. So what USA or what president of USA is, doing against that? अभी tariffs लग रहे हैं, if you remember, right? टैरिफ का जो वॉर चल रहा था अभी, व्हाट इज टैरिफ, यू मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. सो ये चीजें यू शुड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू गेट इनटू इट, सो इंडल्ज करना है खुद को, ऐसा नहीं. ऊपर के ऊपर देख लो. एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अगर कोई पूछता है. बिकॉज सी, व्हेन यू गो फॉर BCA or BBA course, 1 or 2 topics are based on economy, right? So you must know what's going on, right? अगर तुम BSc या फिर कोई और कोर्स करते जहां पे इसका कोई इतना मायना नहीं रखता टॉपिक के वाइज, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता. बट यू आर अपेयरिंग फॉर अ CET जहां पे अपना एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है. यू मस्ट नो दिस थिंग्स, राइट? सिंपल. स्पोर्ट्स along with cricket, along with cricket, you must know different sports as well. Hmm? Medal winners, record and milestones, upcoming major events. So chess, whatever it is, indoor sport ho, outdoor sport ho, you must know few things. Example, chess, uh, badminton, hmm, cricket, football, etc.
ऐसी बहुत सारी चीजें यू मस्ट नो, कौन कौन स्टार प्लेयर्स है वगैरह वगैरह। साइंटिफिक डिस्कवरीज, रिसेंट ब्रेक थ्रू, नोबेल प्राइज विनर्स, स्पेस मिशंस, इनोवेशंस इन मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को रिसेंट इवेंट्स के बारे में पता होगा। इनोवेशन इन मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी ये पढ़ना होगा। नोबेल प्राइज विनर ये एक बार ओवरलुक कर लो, क्योंकि इतने तो ज्यादा होते नहीं है, सो यू कैन रिमेम्बर, नो प्रॉब्लम। रिसेंट ब्रेक थ्रूज, अभी भी रिसेंटली क्या क्या चीजें हुई है, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। वैसे रिसेंटली साइंटिफिक डिस्कवरीज आर नॉट मच फ्रॉम लास्ट 10 years, इतनी नहीं है जो याद रख सको, बट ठीक है। सो दीज आर ऑल टॉपिक्स वी आर कवरिंग। मैं ना सैम्पल क्वेश्चन भी लिखा हुआ हर चीज के बारे में, ठीक है। हर एक इसके सैम्पल क्वेश्चंस, अरे यार इट्स क्वाइट, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। डिस्कार्ड, जस्ट चेंज। इतना छोटा क्यों हो गया यार, ये पता नहीं। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, मतलब ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? इंशाल्लाह ये गो फॉर मैक्सिमम फॉन्ट साइज। ओके, आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू, क्योंकि मैक्सिमम यस, फॉन्ट, सॉरी, मॅक्सिमम फॉन्ट साईज करा ना सर, दिसत नाही म्हणजे. जस्ट अ सेकंड करतो, एक मिनिट ना। आय थिंक मी ती थीम चेंज केल्यामुळे आय गेस तो फॉन्ट ऑटोमॅटिक चेंज झालाय. जस्ट गिव मी अ सेकंड. 6 वरती गेलाय तो रे. इट्स बिकॉज ऑफ थीम ओनली. मी डिझाईन दुसरा चेंज केला ना, दॅट्स वाय. ओके, वी विल कीप विथ द बेसिक डिझाइन इटसेल्फ. ओके, ब्लॅक अँड व्हाईट, त्यामध्ये जरा प्रॉपर दिसतं ते. Okay, just let me know once you can see. Okay, not the screen. Yeah, दिसतंय आता? Hmm? हो सर. Perfect. हम्म. So just ignore the design. It's just a basic black and white font and everything. आपण फक्त क्वेश्चन वरती फोकस करू आता. Just let me know. ह्या क्वेश्चनचे आन्सर्स यू मस्ट नो. I mean, that is a mandate thing. These things आप daily, routine में you must know these things. Okay. So sample questions. Just answer me one by one. Who is the current president of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम द्रौपदी मिनिस्टर मुर्मू. ऑफ इंडिया, यस, यू मस्ट नो द डिफरेंस. बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में, ठीक है। कौन है? बी ऑप्शन, द्रौपदी मुर्मू, राइट। सो एक के बाद एक आंसर देने हैं बस, जिनको आ रहा है उतना। तो विच डांस फॉर्म, व्हाट वाज इट, विच डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम केरला? विच डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम केरला? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी। सब कंफ्यूजिंग लग रहा है कथकली. ना? हम्म, कथकली. कथकली, ग्रेट. Boys say I was expecting this answer, but never mind. Okay, what does GDP stands for? Come on, what is GDP? Gross product. Can you make it clear again? Your voice lagged a little bit. What was it? Gross Op- domestic product. Gross domestic product. Option E. Perfect. A. Perfect. Perfect. So we'll move forward. Come on. Fast दे दो तो बाकी हम लोग LR पे फोकस करें, ये सब चीजें you can do that in your free time as well, right? Come on. Which country won FIFA World Cup 2022? अभी फुटबॉल देखना पड़ेगा उसके लिए. फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी. कोई देखता है? अर्जेंटिना. अर्जेंटीना. परफेक्ट, इट इज करेक्ट. ऑलराइट, अर्जेंटीना. I'll mark it here. Who is known as the father of periodic table? अगर पीरियोडिक टेबल 10th तक दिमित्री पढ़ा होगा तो. मेंडली. Who? दिमित्री मेंडली. Yes, दिमित्री Dmitry मेंडली. Mendeleev. Perfect. Which Indian festival is known as the Festival of Lights? होली, दिवाली. अभी this is तो easy. दिवाली, right? या होली?
D sir. Himani. Yeah. Which organization regulates stock markets in India? SEBI, RBI, IRDA, RBI. NABARD. हाँ? RBI I think so. इसके लिए तुम्हें फुल फॉर्म्स पता होने की जरूरत है, गाइस. ओके, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? टेल मी. Sir, SBI, sorry, SEBI. What does it stand for? Like, what is the abbreviation for that? For SEBI. stock marketing in India. It's Securities and Exchange Board of India. Okay? So ये चीजें देखो, ये चीजें अगर तुम देखते हो डेली, यू माइट गो थ्रू इट, बट कभी है ना ऐसे जाने की कोशिश नहीं की होगी तुम लोग, राइट? इसलिए आरबीआई इज लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईआरडी इज डिफरेंट, नाबार्ड इज डिफरेंट, दीज आर टोटली different departments, right? So SEBI, who won the Nobel Peace Prize sorry, Option A. इसके बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग अभी, ये वाला, who won the Nobel Peace Prize in 2023? Hey, don't Google it, okay? If you don't know, it's fine. Do not Google it. It's okay. तुम्हें पढ़ना है ये चीजें. Come on, tell me. नहीं पता? It's Sir, okay. sir, it was Malala Yousafzai, I think so. तुक्का. बट ऑप्शन ही नहीं है. अच्छा, मलाला. Okay, you are saying Malala. I heard Lala. It's नरगिस मोहम्मदी. पता है किस चीज के लिए जीता था ये? ऊपर लिखा भी है. See, let's not waste time on this thing. This is important. But I believe you are supposed to do these things on your own. Okay? हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा. That will be okay. But बहुत सारी चीजें you need to cover. Where is the headquarters of United Nations? Come on, tell me. New York. That's New York, sir. अभी ये तो बहुत ही ये था, सिंपल था. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बिकॉज एक ही यही आता है ना यूएस में, यूनाइटेड नेशंस. Which is the largest desert in the world? Come on. Sahara, Gobi, Antarctic, Arctic. Perfect. Who wrote the national anthem of India? That is easy. Rabindranath Tagore. Perfect. What about this one? Which is the longest river in India? Brahmaputra. D, I think so. Godavari. On what basis? या फिर तुक्का? It's Ganga. Yes, sir. ठीक है, no problem. Which gas is most abundant in Earth's atmosphere? Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen. Come on. Abundant means समझता है? Abundant क्या होता है मीनिंग? Abundant का मीनिंग क्या होता है बताओ पहले. ज्यादा. बहुत ज्यादा. मोस्टली का सर तो ज्यादा ही होगा. कितने और 17. Okay, great. Hurry. Damn. Just give me a second. All right. So, what was the answer? Come on. Abundant means what? Abundant is like बहुत ज्यादा. Okay. So you might know oxygen बहुत कम है. कार्बन डाइऑक्साइड उसके कंपेरेटिव से थोड़ा ज्यादा है. फिर हाइड्रोजन आता है, उसके ऊपर आता है नाइट्रोजन. सो बहुत सारा नाइट्रोजन अपने एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है अभी फिलहाल तो. ओके, विच इज डेंजरस for humans, but we are adapted to inhale oxygen in place of nitrogen. Okay, now man, थोड़ा आगे जाते हैं. Which Indian won an Olympic gold in javelin throw? ये तो पता होगा. Come on. Neeraj Chopra. Eh? Great. He has been, so viral from that time. So a lot of people know him. Yes. When is Earth Day celebrated? पता है? Earth Day. April 22 April.
20? April 22. Yes, perfect. Great. All right, so यही था. This was about it. Okay. So ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी, this was for general knowledge and awareness. So क्या करना होगा, बस जो भी है ना, YouTube scroll करो, you'll get a lot of information because you are not habitual to read things, right? रीड करने के लिए it will take time. We have 4 days. जितना information collect कर सको, do it. Okay. We'll move to our LR thing. That is most important. 40 questions है उस पे. इस पे you'll get 15 questions. I'm expecting at least 10 तो कर लो. Shall we move to LR? Hmm? Yes, sir. अरे बोलो यार. I know it's not that interesting than general knowledge, but थोड़ा पढ़ लोगे ना तो it will be more interesting, you know. Now, चलो. Let me open my content. What I'm sharing though. अच्छा, white board है ना. ओके, ये 5 टॉपिक तो हम लोगों ने कर लिए. डायरेक्शन हो गया, नंबर ऑफ टॉपिक, सेंटेंस करेक्शन, सिंपल न्यूट्रिशन, फूड. ठीक है, ये सारे तो टॉपिक हम लोगों ने कर लिए. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थोड़ा, यू नो, आई गिव यू अ रैंडम टॉपिक टुडे. जो एलआर के बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें अरिथमेटिक रीजनिंग आता है. अरिथमेटिक रीजनिंग पता क्या होता है? वन वन इज वर्बल रीजनिंग, वन इज अरिथमेटिक रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग तो हम लोग देख चुके हैं. ठीक है, अरिथमेटिक रीजनिंग जिसमें अरिथमेटिक आता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा. ओके, सो जस्ट थोड़ा एक डिस्कशन करेंगे आज. ओके, तो ये अगर टॉपिक आ गया ना, सो आई एम नॉट जस्ट टीचिंग यू अबाउट बीसीए सीईटी. अगर ये तुम्हें सॉल्व करना आ गया, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम. आई मीन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट यू कैन क्रैक एनी एग्जाम with this knowledge. Okay, so do you know what is this? क्या है ये? Percentage? Percent. Yeah, how many of you know how to calculate percentage? Honestly बताना, ठीक है, गूगल वाला नहीं. ग्रेट, आरती नोज. बाकी लोग कैसे पास हुए विदाउट परसेंटेज? सो इफ आई आस्क यू 70 का 12%, बताओ कितना आएगा? 70 का 12% कितना आता है? ना कैलकुलेटर यूज करना है ना गूगल यूज करना है. गिव मी द आंसर डायरेक्टली. मैनुअली थोड़ा कैलकुलेट करना सीखोगे. अच्छा ठीक है, forget about the answer. Do you know how do we calculate that? Can you tell me the formula? Anyone? Aarti, you knew that, right? Come on, tell me. What is the formula to calculate 70 का 12%? Speak up. देखो, आई वांट आंसर्स. क्यों पता है क्या? आई टेल यू वन थिंग. अभी बीसीए तो करोगे तुम लोग, हाँ? बीसीए या फिर बीबीए करोगे. यू माइट प्लान फॉर एमसीए, राइट, आफ्टरवर्ड्स. एमसीए या एमबीए, है ना? इसके लिए भी सीईटी लगता है, इफ यू नो. इसकी सीईटी के सिलेबस में ना एक मैथमेटिक्स का भी टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्वांट. ठीक है, अगर ये अभी प्रिपेयर नहीं करोगे तो वो टाइम पे बहुत मुश्किल जाएगा. और ये जो पार्ट है ना जो मैं सिखा रहा हूँ परसेंटेज, ये क्वांट में भी, ये इसकी सीईटी में भी आता है और इसकी सीईटी में भी आता है. और बेस्ट पार्ट ये है कि इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज परफेक्टली, ये जो क्वांट या फिर इसका भी टॉपिक है ना, इसके 5 से 6 टॉपिक जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो इसके टॉपिक हो गए. बट यू मस्ट नो दिस थिंग. और परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स है ना इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट मी. तो थोड़ा ध्यान दोगे ना तो फायदा बहुत होने वाला है. सो जस्ट टेल मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट 12% of 70. Anyone? Aarti, you just raise your hand. Come on. Yeah. 100. Come on. थोड़ा सा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे. क्या लिखो यहाँ पे? 70 by 12 70 into 12 by 100. This is what you do.
है ना? Divide. यस, यही Yes, करते हो ना तुम sir. लोग। अभी मुझे 8.4 बताओ is answer. कितना आ रहा है आंसर? 8.4. 8.4। ग्रेट। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी मैं नंबर दे दूं, उसका एक परसेंटेज निकालने के लिए बोलूं, आर यू गोना डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन ऑन द पेपर? ये तो मैन्युअली करने से होगा नहीं, आई नो दैट। 70 था इसलिए शायद हो भी जाएगा, लेकिन अगर 76 देता हूँ यहाँ पे, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। क्यों पता है? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू कैलकुलेट इट मैन्युअली। तो हम लोग है ना, थोड़ा सा है ना, एक बेसिक आइडिया देता हूँ मैं कैसे करना है कैलकुलेट परसेंटेज विदाउट मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, क्योंकि वो थोड़ा है ना हेक्टिक है, वो हम लोगों को आदत नहीं है करने की। बट आदत किस चीज की है? अच्छा टेल मी, क्या है आंसर? कम ऑन, इसको तो लेट मत करो यार, इसका तो आंसर बता दो फास्ट। कम ऑन। 6. हम्म कितना टाइम लगा? कम ऑन फॉर दिस वन। 38. 38। अभी ऐसे ही फास्ट आंसर दो। 21 - 9 कितना आएगा? 4 plus है 12। 12 वेल, इतना टाइम लगता है क्या प्लस माइनस करने के लिए? ठीक है चलो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज, ये सारे जो ऑपरेशंस है ना, दीज आर क्वाइट इजी टू कैलकुलेट मैन्युअली। इसके लिए लिखना नहीं पड़ता तुम लोगों को, राइट? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये और ये इजीली हो जाता है। सो बाय कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज भी इसको ही लेके सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है? कैसे वो बताता हूँ, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, जस्ट कीप दैट इन माइंड। अभी मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिखूंगा, जस्ट बताने आओ। टेल मी, व्हाट इज 100% ऑफ 70? फास्ट गाइस। 30%. 100% ऑफ 70, 100। सॉरी. हाँ नहीं, मैंने सुना नहीं था, व्हाट यू सेड, व्हाट इज इट? 30%. क्यों? बिकॉज आपने यही Because- बोला ना कि 100% में का 70% क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा 70 का 100% क्या होगा। 70 का 100%, 70 होगा. परफेक्ट। तो यही आंसर देना था। ऑल ऑफ यू सब ध्यान दो। 70 का 100% क्या था? 70। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट 10% ऑफ 70? और 7. 7। जिनको पता नहीं है ना, उनके लिए बता रहा हूँ, वी आर जस्ट शिफ्टिंग द डेसिमल। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल डाल दूँ तो ये 10% हो गया। यहाँ से निकाल के मैं अगर डेसिमल यहाँ पे डाल दूँ तो क्या हो गया? 1% हो गया। हमें जस्ट डेसिमल शिफ्ट करना है, तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। कहाँ पे? 70 में। ठीक है? तो मैं 10% बोलता हूँ तो यहाँ पे मैं एक डेसिमल आगे बढ़ा, तो यहाँ पे भी एक ही डेसिमल आगे बढ़ूंगा, इट विल बी 7। टेल मी 1%। 0.7. यस 2.7. यस। नाउ आरती जस्ट स्पोक आउट, दैट्स गुड। बाकी लोग कम ऑन। सेकंड आरती, वन। हु इज देयर यार, मैं देखा नहीं कौन कौन है आज। विवेक एंड आरती आर स्पीकिंग। व्हाट अबाउट समीक्षा, सचिता, शबीना, आरती? So many people are there, right? So come on, answer me. 0.1% क्या होगा? 0.07। 0.07. Yes, 0.07। 0.07. Yes, अभी 10% तुम लोगों को पता है क्या होता है, तो टेल मी व्हाट विल बी 5%। कम ऑन। अगर 10% 7 है, तो टेल मी 5% क्या होगा? Half of 7. Half of 7, which is 3.5. That's correct. That's totally correct. Now tell me what is 50% of 70? 35%. There are two ways. 35. इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, हम्म. या फिर इसके आगे एक डेसिमल बढ़ा दो। 3.5 है ना, उसको 35 कर दो। हो गया? हम्म. नाउ 25% कितना हुआ फिर? इसके भी दो तरीके हैं। 50 को हाफ करो, या फिर 70 के 4 पार्ट करो डिवाइडेड बाय 4 करके, एक पार्ट होगा 25%। ये सब चीजें पता है तुम लोगों को?
आई होप 17.5। अभी ये जो परसेंटेज है ना, ये सारे परसेंटेज हम लोगों ने विदाउट द फॉर्मूला कैलकुलेट किए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। ये सारे परसेंटेज हम लोगों ने खाली नंबर देखा, उस नंबर को देख के हम लोगों ने ये परसेंटेज सॉल्व किया। अभी मुझे बताओ व्हाट विल बी 19% ऑफ 70। सो व्हाट यू सपोज टू डू हियर इज, एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, वही करना है। टेक 10%, 10% क्या है 7, प्लस 10% वापस क्या है 7, हो गया कितना 20% हो गया ये। बट व्हाट वी वांट 19 माइनस 0.7, 7 7 becomes 14 minus 0.7 becomes 13.3, हो गया। इजी है ना ये। हाँ, तो ये वाला है ना, इसकी आदत लगानी होती है, इसकी आदत लगानी होती है। यू हैव टू लर्न दिस थिंग फॉर 10 days। क्या करना है, 10 दिन के लिए पढ़ने नहीं बैठना है। देखो, रैंडमली कोई भी नंबर लो और पूछो खुद को 17% क्या होगा इसका, और कैलकुलेट करो। टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, आई डोंट केयर अबाउट द टाइम। व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज एक्यूरेसी। ओके, जब एक्यूरेसी बराबर आने चालू हो जाएगी ना, यू विल केयर अबाउट टाइम ऑटोमेटिकली। तो नाउ इसका फायदा ना बहुत सारी चीजों में हो जाएगा, ठीक है। अभी ये समझ में आ रहा होगा सबको, आई बिलीव। तो मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। Is wrong with this? It's asking you to sign up. Great. So don't ask yourself ऐसा 100 का 20% कितना होता है, इतना इजी नहीं करना है। मेक इट हार्डर डे बाय डे, तो इजीली हो जाएगा। ऐसे सारे परसेंटेज यू कैन कैलकुलेट। इवन इफ आई आस्क नाउ कि 70 का, कम ऑन यू गाइस टेल मी, 70 का 31% कितना होगा? 31%। 70 का 31% कितना होगा? यूज द सेम मेथड जो मैंने अभी की है। क्या करना है, 10% लो, 10% लो, 10% लो, ऐड कर दो, कितना होगा? 21.7। 21.7, सिंपल। 7 7 7.7, 10 10 10 30, 31। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Perfect. So now I'll just erase everything. I hope I can do that. Can I? E. Never mind. I have to do it manually every. ठीक। अभी परसेंटेज समझ में आ गया ना, इसका लॉजिक बहुत सारी चीजों में यूज होता है, ठीक है। अभी ये एलआर का पार्ट थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। सो इसमें ज्यादा हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अरिथमेटिक रीजनिंग में ऐसा आता है, परसेंटेज वाला कैलकुलेशन आएगा। अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके बाद हम लोग पजल्स वाले क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोस। चलो, सब लोग आंसर देंगे। एक लॉजिकल बिल्डिंग के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 4th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। A vendor bought 6 oranges for ₹10। ये समझा सबको क्या स्टेटमेंट है? यस और नो, गिव मी आंसर्स प्लीज। Yes, sir. वेंडर समझता है ना सबको, शॉपकीपर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड sold them at the rate of at the rate of 4 for ₹6। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, जो भी है उसका परसेंटेज बताना है। सो ऐसे क्वेश्चंस शायद ही आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन ये अगर सॉल्व कर पाओगे ना, लॉजिकल बिल्डिंग, आई विल सपोज कि अच्छा है तुम लोग। ठीक है, कम ऑन टेल मी नाउ, सॉल्व करो, सॉल्व करो, थिंक अबाउट इट।
ओके, कम ऑन, एनीवन सॉल्व कर पाई ये क्वेश्चन? कम ऑन, कोई तो होगा। आरती, विवेक, क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया प्लीज लेट मी नो। अच्छा, किसको समझ में आया? कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो यस क्वेश्चन समझ, ओके ग्रेट। तो विवेक, आरती, टेल मी, क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? वेंडर ने क्या किया है, हाँ। 10 रुपए को 6 ऑरेंजेस लिए हैं और उसने बेचे हैं उनको कैसे? एक रेट के हिसाब से। क्या रेट है उसका? 4 रुपीज 6। तो इसके हिसाब से व्हाट ही अर्नड, परसेंटेज में बताओ या फिर रुपीज में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 24. कितना? तो अच्छा, चैट बॉक्स में लिख सकते हो सब लोग आंसर? चैट बॉक्स में लिख के भेजो, तो आई कीप दैट इन माइंड, क्योंकि अगर आवाज जंबल हो गया तो समझेगा नहीं किसने क्या आंसर दिया है। चैट बॉक्स में ना आंसर लिख के भेजो मुझे। चैट बॉक्स बंद है सर। ओह, चैट बॉक्स बंद है, व्हाई सो? मीटिंग्स ओनली मेंबर्स ऑफ द टीम, हाँ यू गाइस आर अनवेरिफाइड राइट, दैट्स व्हाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो ऐसे ही आंसर दे दो, कोई टेंशन नहीं है। और लॉस किया है बिकॉज सर उसने 6 रुपए में मतलब 4 रुपए कम बेचा उसने। ये लॉस है और उसका परसेंटेज शायद टाइम लगेगा ना। हाँ, कोई टेंशन नहीं है, टाइम लगने दो, बट वापस एक्सप्लेन करो, व्हाट डिड यू से? किसने 6 ऑरेंजेस लिए कितने को? 10 रुपए को। तो लॉस होगा क्यों? हम्म। क्यों? देखो, मैंने उसका लॉस क्वेश्चन पढ़ा करो पूरा सब लोग। व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन, रीड इट थॉरोली। सोल्ड देम मतलब क्या होता है? सब बेच दिया ना उसने। सब सब मतलब कितने? हाउ मेनी ही हैड? 6 ऑरेंजेस। अभी थोड़ा समझ लो क्वेश्चन को। अ वेंडर बॉट 6 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 10। उसने क्या किया? 6 ऑरेंजेस लिए कितने रुपए को? 10 रुपए को। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 4 4 6। सो व्हेन यू गो टू अ मार्केट प्लेस, you might have heard a lot of shopkeepers shouting the rate, 10 के दो, 10 के दो। You might have seen that, right? 10 के दो, what does that mean? वो 10 के दो बेच के घर जाने वाला है क्या? नहीं ना। ही इज गोना सेल हिज होल स्टॉक, पूरा स्टॉक बेचेगा वो अपना इस रेट से। तो यहाँ पे रेट क्या है? 4 4 रुपीज 6। उसका स्टॉक कितना है? 6 ऑरेंजेस। ये रेट से उसने 6 के 6 ऑरेंजेस बेच दिए। ये रेट क्या है? 4 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 6। अगर 4 ऑरेंजेस रुपीज 6 को है तो एक ऑरेंज कितने का हुआ? कम ऑन, कैलकुलेट। देखो, ये एक ऑरेंज, ये एक वन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज, ये एक वन ऑरेंज, है। कितना? 1.5 ना। ये 1.5 को, ये हम्म। 1.5, सो पर ऑरेंज प्राइस कितना हुआ उसका सेलिंग का? 1.5। इसके हिसाब से 6 रुपए हो गया ना, है ना? तो भी हम्म। 4 ऑरेंजेस 6 के हिसाब से उसने बेचे कितने ऑरेंजेस? 6 ऑरेंजेस, राइट? तो 1.5 रुपीज इंटू 6 कितना होता है? 9। कैलकुलेशन इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ, सबके पास है। तो अगर उसने 1.5 रुपए के हिसाब से, मतलब ये जो रेट है ना, ये रेट, इसके हिसाब से अगर सारे के सारे ऑरेंजेस बेच दिए, मतलब उसने एक ऑरेंज बेचा है 1.5 रुपए को, तो 6 ऑरेंज की प्राइस हो गई 9 रुपए। लिए कितने को थे उसने? 10 रुपए को। बेचे कितने को? 9 रुपए को। कितना? 1 रुपए का लॉस है, विच इज 10% ऑफ 10 रुपीज। नेवर माइंड, इससे भी एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, टू क्लियर योर लॉजिक। एक बार पता चल जाए इसका इरेज कैसे करते हैं, आई डोंट नो। परफेक्ट, या एक और क्वेश्चन देता हूँ। डू यू गाइज लाइक शॉपिंग? आई मीन, डू यू गो टू शॉपिंग, क्लोथ्स, मर्चेंडाइज एंड ऑल? जाते हो? जाते भी होंगे, बताओगे नहीं मुझे, आई नो। सो ओके, यू गो टू स्टोर। अच्छा, ये पता है सब लोगों को? पता है? दिस इज अ ब्रांड ऑफ क्लॉथ। डेनिम्स, है ना? बहुत सारे हम्म। ब्रांड्स हैं। लेट्स से तुम यहाँ पे जाते हो, यू गेट अ जीन्स, ओके,
तुम्हें ना एक जीन्स पसंद आती है, आई ड्रॉ जीन्स हियर, थोड़ा बैगी जीन्स है, ओके। तुम्हें ये जीन्स पसंद आती है, इट्स रियली गुड। शॉपकीपर गिव्स यू टू ऑप्शंस, आपको चूज करना है ऑफर के लिए। पहला ऑफर है 50% ऑफ, दूसरा ऑफर है 40 प्लस 10% ऑफ, 40% प्लस 10% ऑफ, ऐसा। मैं अच्छे से लिखता हूँ ना। दूसरा ऑफर क्या है? 40% प्लस 10% ऑफ। कौन सा वाला चूज करोगे तुम लोग? एक ही चूज करना है, कौन सा चूज करोगे? थिंक अबाउट इट, आई गिव यू अ मिनट एंड लेट मी नो। 50%। कितना? 50%। क्यों? 50%। देखो बिकॉज क्यों। अगर समझो वो जीन्स 100 रुपए की है हम्म। फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो पहले उसका 40% निकलेगा, यानी कि 100 रुपए का जीन्स 60 में हो जाएगा 40%। हाँ। तो फिर 60 हम्म। का 10% निकलेगा, तो वो हमको मिलेगा कुछ 54 का मिलेगा, मतलब मेरे को 4 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। राइट, और 50% में क्या होगा? और 50% में मेरे को 50 में मिल जाएगा वो जीन्स। बराबर, सिंपल। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि 40 और 10%, 40 प्लस 10 तो 50% ही हुआ, राइट? लेकिन ये ऐसा नहीं चलता। ये कैसा है, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल डिस्काउंट। एडिशनल डिस्काउंट क्या होता है, सिंपली बताता हूँ मैं। फ्लैट डिस्काउंट्स और फ्लैट डिस्काउंट्स, सिंपल। मतलब जो अमाउंट दिख रहा है, अगर मैं उस पर 50%, 10% जितना भी लगा रहा हूँ ना, वो मेरा फ्लैट डिस्काउंट हो गया, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा। लेकिन एडिशनल डिस्काउंट मतलब क्या होता है? लेट्स अप्लाई 1000 रुपए की जींस है। हम्म 1000 रुपए की जीन्स अगर मैं 50% ऑफ से लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफ, तो कितना रुपए ऑफ होगा? -500 होगा, और आई गेट दैट जीन्स फॉर 500 रुपीज। सबको समझता है ये 50% ऑफ मतलब क्या होता है? सिंपल। लेकिन दूसरे सिनेरियो में क्या होगा? एडिशनल डिस्काउंट है यहाँ पे, ओके। पहला डिस्काउंट है 40% का, उससे कितना माइनस होगा? 400। 40% ऑफ 1000 इज 400, राइट? माइनस होने के बाद कितना अमाउंट बचेगा? 600। अभी होगा क्या, बचा हुआ 10% जो है ना, वो इस पे लगेगा, 600 पे। तो 10% ऑफ 600 कितना हुआ? 60। माइनस कर दूंगा इससे, क्या हो गया? 540। तो मुझे जीन्स कितने में मिल रहा है? 540 में। यहाँ पे कितने को मिल रहा है? 500। अगर ये ओवरऑल चेंज देखोगे कितने का हुआ है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 1000 माइनस 540 मतलब कितना हुआ? कितना बचता है? कितना परसेंट बचा? कम ऑन टेल मी। यहाँ पे कैसा हुआ? 1000 माइनस 500, 50। 500 का मतलब 50% कम हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? ये ओवरऑल चेंज कितने का है? चलो, 1000 रुपये समझ में नहीं आ रहा, 100 में कर लो, 54। ठीक है। ये कितने का हुआ फिर अभी चेंज? 100 - 54 कितना होता है? 46। तो 46% मतलब 40% प्लस 10%, ये जो एडिशनल डिस्काउंट है ना, इट इज इक्वल टू 46% ओवरऑल, नॉट 50%। समझ में आ रहा है? ये हो गया ओके एडिशनल सर। डिस्काउंट। यस, ये हो गया एडिशनल डिस्काउंट। ये ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना तो दिमाग थोड़ा चलता रहेगा, ओके। अभी थोड़ा ना सिटिंग अरेंजमेंट का देखते हैं। हम्म सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई शेयर द पीपीटी। सिटिंग अरेंजमेंट। नेवर माइंड, थोड़ी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, जस्ट ऑन दैट एंड आंसर मी। सबको दिख रहा है? यस और नो, शैल आई प्रोसीड? Yes, sir. ओके, ग्रेट। Come on. 8 friends A, B, C, D, E, F, G, H are sitting in a circle facing the center.
B is sitting between G and D. H is third to the left of B and second to the right of A. C is sitting between A and G and B and E are not sitting opposite to each other. ये एक ही क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोगों का, because I have infused 2 to 3 questions in that. So which of the following statement is not correct? C is third to the right of D. E is sitting between F and D. A is sitting between C and F, and E and C are sitting opposite to each other. इस सोचो और आंसर करो. ओके इसके लिए क्या करना है मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. आई गिव यू 3 minutes फॉर दिस. ओके बिकॉज ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. कभी कभी कैसा होता है इन LR यू माइट गेट अ पैराग्राफ और उसके बेस्ड पे ना यू गेट एटलीस्ट 2 to 3 questions. So if you spend 3 minutes, or if let's say if you spend 1.5 minutes to read this question, interpret it, it's fine. जितना अच्छा से इंटरप्रेट करोगे ना उतने अच्छे से आंसर दे पाओगे. तो आंसर देने के लिए 3 क्वेश्चंस के ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. व्हाट वी आर टारगेटिंग कि एक क्वेश्चन हमारा एटलीस्ट 40 सेकेंड्स में सॉल्व हो. तो अगर 1.5 मिनट तुम इस क्वेश्चन पे देते हो तो बाकी आधा मिनट यू कैन सॉल्व 3 क्वेश्चंस. दैट्स गुड. ओके सो जस्ट थिंक अबाउट इट. कैसे होगा मैं थोड़ा सा टिप दे देता हूँ. यहाँ पे देखो एक सर्कुलर में बैठा ना, ऐसे बैठे ये लोग फेसिंग टुवर्ड सेंटर. सबके जो है ना वो ऐसे है. यहाँ पे मैं ना थोड़ा सर्कल अच्छे से निकालता हूँ. Okay. मेरा सर्कल कभी ज्वाइन होता ही नहीं है यहाँ, पता नहीं क्यों. ये राइटिंग ओके परफेक्ट. कितने लोग हैं ABC 8 फ्रेंड्स. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं. दे आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर. अभी इतना तो मैंने बता दिया, बहुत बता दिया मैंने. कम ऑन नाउ जस्ट थिंक एंड जस्ट गिव मी द आंसर. कम ऑन. कम ऑन क्या है आंसर बताओ जल्दी. आई गिव यू इनफ टाइम गाइस. अच्छा आई यू सॉल्विंग दैट. तुम्हें और टाइम दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे बैठे मत रहो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. Are you guys solving the question or just बैठे हुए हो? I know it's a lunch time. You can have your lunch along with the lecture as well. कोई restriction नहीं है. It's okay. But इस पे फोकस करो थोड़ा. Come on आरती विवेक बाकी लोग जो बात नहीं करते.
आर्या, अलीना, कौन सॉल्व कर रहे हो? यस और नो? Yes, sir, but यस सर। confusing. कंफ्यूजिंग है? इट्स ओके, कंफ्यूजन है, इट्स फाइन। सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन तो रहेगा ही। ठीक है, ट्राई करो, टेक वन और कपल ऑफ मिनट्स अगेन और ट्राई करो। Sir, option D. क्या है ऑप्शन? D. डी? नो, ऑप्शन मैं बताता हूँ क्या होगा। ऑप्शन रहेगा बी। अब इसके हिसाब से अगर तुम्हारा अरेंजमेंट थोड़ा बहुत गलत आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नीड टू सॉल्व दिस। एज आई सेड, मैंने क्वेश्चन को बहुत सफल किया हुआ है। ठीक है, आई डू वन थिंग, सेम क्वेश्चन होगा लेकिन तुम्हें ये आंसर करना है। ट्राई ना, सेम क्वेश्चन बट आंसर दिस, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी?
क्या आ रहा है आंसर? सी। अभी जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना, जस्ट फोकस हियर, कम ऑन। इसमें ना थोड़ा स्टेबल माइंड रखो। क्वेश्चन बहुत इजी है ये वाले, सिटिंग अरेंजमेंट वाले। थोड़े छोटे छोटे आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ये थोड़ा हाई लेवल का था। बट अगर ये सोच पा रहे हो तो आई थॉट कि तुम लोग छोटे क्वेश्चन भी सोच पाओगे। नाउ क्या ट्रिक है ये बता दो। ये देखो, मेक अ सर्कल। ओके, कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। थोड़ा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अरे थोड़ा जंगल हो गया इसमें। थोड़ा ये पर्टिकुलरली करोगे ना तो ये जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर। मतलब सब लोग ऐसे गोल बना के बैठे हुए हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 8 पीपल। ओके, तो पहला कंडीशन देखो, बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, तो मैं कहीं पे भी रैंडमली ना जी और डी को लिखता हूँ। ओके, तो क्या बोला इन लोगों ने? बी यहाँ पे बैठा हुआ है उनके बीच में। दैट इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट हमने कर लिया। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एच इज थर्ड। अभी मुझे एक बात बताओ, ये बी का ये साइड है और बी का ये साइड है, इसमें से लेफ्ट कौन सा और राइट कौन सा? ये कौन सा साइड हो गया बी का? ये कौन सा साइड हो गया? कम ऑन। अगर बी फेस यहाँ पे कर रहा है तो बी का ये साइड कौन सा है? राइट साइड हो गया ना ये। राइट। यस, और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो उन्होंने क्या बोला है? एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। लेफ्ट साइड में एच को थर्ड पोजीशन पे लगता है बी से। 1, 2, 3, एच आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एच आ गया। चलो सेकंड स्टेटमेंट भी हो गया। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ है, ये क्या है? एच का पोजीशन है एच। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अभी एच यहाँ पे फेस कर रहा है, तो सेकंड टू द राइट ऑफ ए मतलब यहाँ से ये साइड से यहाँ पे कहीं पे ए बैठा होगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पे? ए जहां पे भी बैठा है ना, उसकी पोजीशन से एच जो है वो राइट साइड में सेकंड प्लेस पे है। तुम, ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस। ये हो गया, ये समझ में आया? सिंपल। अभी क्या बचा है? सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। अभी ए एंड जी के बीच में, ए एंड जी कहाँ पे? जी यहाँ पे देखो, इनके बीच में कौन बैठा है? सी। ओके, एंड बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट क्यों दिया है समझ लो। बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। बी एंड ई अपोजिट साइड में, ये जगह है, तो यहाँ पे ई तो नहीं आएगा। बची कौन सी जगह? ये जगह, तो यहाँ पे ई आ गया। बचता कौन है फिर? एफ। यहाँ पे रख दो। समझ में आया सबको? देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इतना इजी, इतना हार्ड नहीं है। वन बाय वन एक स्टेटमेंट को तुम लोग अगर प्लेस करोगे, अगर आगे जाके कोई लाइक इफ यू गेट सम अदर स्टेटमेंट जो तुम्हारे पहले स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या फिर गलत कर रहा है, तो यू कैन चेंज दैट। कितने लोगों का यही डायग्राम आया है बताओ? कम ऑन। बहुत सारे लोगों का नहीं आया होगा, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सबको समझा है? अभी यहाँ पे क्या लिखा है? हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी का लेफ्ट साइड कौन सा है? ये हो गया उसका राइट साइड, ये हो गया उसका लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, कौन आ रहा है? एफ आ रहा है ना, तो आंसर क्या हो गया? सी। अभी ये करो, ये छोटा वाला है, ये समझ में आ जाएगा शायद। ट्राई करोगे? प्लीज ट्राई करोगे इस, देखो ट्राई नहीं करोगे तो होगा नहीं। और कंफ्यूजन या फिर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो, बट फर्स्ट रीड इट।
Option A. Yes. Who was that? हेलो. अच्छा, कोई कुछ बोला क्या? नेवर माइंड. अच्छा, समझ में आ रहा है आंसर क्वेश्चन गाइस? यस सर. हाँ. सो आरती, यू सॉल्व्ड इट और ट्राई कर रहे हो अभी भी? सर सॉल्व. ओए ग्रेट यार, सॉल्व हो गया. बताओ आंसर क्या है? सर ऑप्शन ए ही है इसका. ऑप्शन ए, विच इज आरबी. ओके, यस सर. ग्रेट. दैट्स बिकॉज परफेक्ट. बाकी बिटवीन लोग? आर एंड सी. दैट्स रियली करेक्ट. डोंट वरी. बाकी लोगों का क्या हो गया? उनका नहीं आ रहा है. कम ऑन. अरे बहुत इजी है गाइस. देखो, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, एक सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत ज्यादा है तुम लोगों को. बस देयर इज नो अदर सोल्यूशन. अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, आ रहा है तो और प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आ नहीं रहा है सर, आई वोंट डू इट और ऐसा कुछ बोलो मत प्लीज. ओके, जस्ट प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन नाउ. सो नाउ टेल मी, PQRSTUVW, कितने लोग हैं ये भी 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड. ये देखो ये ऐसा राउंड सर्कल है. सेम 8 लोग हैं तो मैं ऐसे मार्क करता हूँ सिस्टमेटिकली. ठीक है, 8 लोगों के लिए फेसिंग द सेंटर. मोस्टली कैसे होता है ना, फेसिंग द सेंटर वाले क्वेश्चन आते हैं. क्योंकि ये क्यों बताते हैं फेसिंग द सेंटर? टू अंडरस्टैंड द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ईच कैंडिडेट और ईच पर्सन देयर. अगर वो फेसिंग आउट ऑफ सेंटर करते या फिर अपोजिट टू द सेंटर करते तो क्या होता है, जो भी लेफ्ट और राइट साइड है वो वाइस वर्सा हो जाएगी. सिंपल सी बात है, बाकी कोई रीजन नहीं इसके पीछे. 4 कंडीशंस है. पी P is second to the right of T, who's the neighbor of R and V. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना? तो हम लोग इसको नहीं पकड़ेंगे अभी. हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे. S is not neighbor, अभी नॉट वाला तो होगा नहीं. V is the neighbor of U. नेबर क्या होता है गाइस? कैन यू टेल मी प्लीज? नेबर मतलब क्या होता है? पड़ोस. पड़ोसी. पड़ोसी. पड़ोसी तो होता है ऑब्वियसली, बट बताओ मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा पड़ोसी को? कम ऑन, सर यहाँ पे यू कैसे के दिखाऊंगा? बगल में वी. यू के बगल में वी. यू के बगल में वी. ओके ग्रेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अच्छा, ग्रेट. यू के बगल में मैं क्या करता हूँ बताया क्या? यू के बगल में वी लिखता हूं मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा यू को, यहाँ पे लिखता हूँ वी को. ठीक है, चलेगा ना? यस यू कौन सा सर. वी कौन सा समझ में नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है, आई राइट इट लाइक दिस. ये हो गया वी. ठीक है, सिंपल. आगे क्या बोला है? क्यू. अभी देखो, यू एंड वी दिया है ना हम लोगों ने, तो हमें करना क्या है पता है? यू और वी से रिलेटेड कोई होगा तो देखना है स्टेटमेंट. हाँ, क्या लिखा है? क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू. एस एंड डब्ल्यू को तो पता नहीं, क्यू तो दूर की बात है. डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस. बिटवीन यू एंड एस, यू एंड एस के बिटवीन कौन नहीं है? डब्ल्यू. राइट, ठीक है, इससे भी कुछ पता नहीं चलेगा हम लोगों को, आई बिलीव. वी इज नेबर ऑफ यू. वी इज नेबर ऑफ यू, ये तो लिख दिया है. एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी. पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज द नेबर ऑफ आर एंड वी. तो आर एंड वी अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, टी हु इज द नेबर ऑफ आर एंड वी. आर एंड वी दोनों का नेबर है, मतलब ये बीच में होना चाहिए. टी को यहाँ पे रखता हूँ, आर को यहाँ पे रखता हूँ. टी हु इज द नेबर ऑफ आर एंड वी, ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया. पी इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ टी. राइट, टी का राइट क्या आ गया? ये उसका सेकेंड पोजीशन क्या आएगा? 1 2. यहाँ पे लिखूंगा मैं पी को. खत्म. बचते 3 ही पोजीशन, वो कहीं से पता चलेंगे हम लोग को. एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, मतलब पी के साइड में तो एस आएगा नहीं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे वाले देखते हैं. क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू. क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू. क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में तो नहीं है, है ना? अभी यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है,
यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे ऐसा आ सकता है, यहाँ पे ऐसा आ सकता है। इन्होंने बोला क्या है, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। तो ये पोजीशन तो क्यू का होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने क्यू क्यों रख दिया ना, तो यहाँ पे एस या फिर डब्ल्यू आएगा, या फिर यहाँ पे एस या फिर डब्ल्यू आएगा, दोनों के बीच में हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे तो क्यू आएगा नहीं, तो क्या आएगा? वापिस से देखो, एस इज नॉट नेबर ऑफ पी, पी का नेबर एस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कहाँ आएगा? पी कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? यहाँ पे। पी का नेबर नहीं है एस। यहाँ पे अगर लिख देता हो तो डब्ल्यू को लिखने के लिए जगह नहीं, सो आई जस्ट राइट एस हियर। क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि डब्ल्यू अगर क्यू अगर यहाँ पे आ गया तो डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू। तो मैं यहाँ पे क्यू को लिखूंगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू को लिखूंगा। तो फाइनल स्टेटमेंट ये आएगा। आरती यही है? यस इज सर। इट करेक्ट? परफेक्ट। बाकी लोग देखो, मेरा समझाने का तरीका शायद अलग होगा, तुम्हारा समझने का तरीका शायद अलग होगा। व्हाट आई वांट यू यू नो टू डू इज प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कैसा होता है, कई बार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बट वंस यू ट्राई टू रीड दैट क्वेश्चन 4 और 5 टाइम्स, एक ऐसा है ना टिप मिल जाता है। हर एक को, हर एक का अलग है, वो लॉजिकल रीजनिंग है नो। मैं तुम लोगों को ये सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक बताऊंगा, यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम लॉजिक, बट अगले वाले क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगता होगा, तो वहां पे क्या करोगे? सो आई वांट यू टू बिल्ड योर लॉजिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कितना करते हो ना, ये बिल्ड करना है, और ये बिल्ड करने के लिए यू नीड प्रैक्टिस। नथिंग एल्स इज गोना हेल्प यू। कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, बेस से चालू करो, स्टार्ट करो। और ऐसे है ना, एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व अ लॉट। 10 से 15 क्वेश्चन आर इनफ, और ऐसा क्वेश्चन आता ही है फॉर श्योर। देखो, क्या क्वेश्चन था वो भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, मैं तो डायरेक्टली ये तुम लोगों को डायग्राम दिया। इसको लेके तुम लोगों को क्या लिखना है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। आर एंड बी नेबर्स है क्या? नहीं है, पहले ही ऑप्शन हो गया। तो इसके लिए ना बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो, अगर करेक्ट आ रही कि नहीं। यूवी, यस, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आर पी, देखो आर एंड पी तो नेबर हो रहा है। क्यू डब्ल्यू, वो तो नेबर हो रहा है, तो बचा कौन? आर बी। ठीक है। सेम क्वेश्चन का दूसरा आंसर बताना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस बिटवीन यू। अभी क्या करूं मैं, इसको उठा क्या, इसको उठा लेते चलो, या इसको यहां से कॉपी करके वी विल राइट। ओ डैम, अच्छा नहीं होगा, छोड़ो। अच्छा कोई नहीं, क्वेश्चन का तो ये हो गया ना तुम लोगों के पास। बाकी लोग कहाँ गए, सो गए लंच करके? चलो, दिस वाज अबाउट सीटिंग अरेंजमेंट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इफ आई गो फॉरवर्ड थोड़ा सा, तो यही क्वेश्चन है आगे, यही क्वेश्चन है। अच्छा ये हो गया, ये हो पाएगा तुम लोगों से? ये लास्ट क्वेश्चन ले लो चलो, सीटिंग अरेंजमेंट खत्म कर देंगे अपन। तो यही मेन टॉपिक था आज का। आरती कम ऑन, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। बाकी लोग, विवेक वगैरह, सब लोग ट्राई करोगे, ये इजी वाला है, ये पहले जैसा नहीं है, ये इजी वाला है। 6 trends PQRSTU are sitting around the hexagonal table। अभी हेक्सागोन क्या होता है वो पता होना चाहिए। हेक्सागोन को कितने साइड्स रहते हैं? 6, राइट? 6 या 5? सर 6। 6, ग्रेट। मुझे लगा 5 होता है, आई फॉरगॉट। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, हेक्सागोन को एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया, ये चौथा साइड हो गया, ये पांचवा साइड हो गया, और ये 6 साइड। अभी कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। योर हेक्सागोन कैन बी लाइक एनीथिंग। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल ईच एट वन कॉर्नर। कॉर्नर पे बैठे हुए लोग, आर फेसिंग द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। फेसिंग द सेंटर मतलब यहाँ पे, वैसे ही जैसे सर्कल में बैठे हुए थे। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। अभी होगा क्या पता है, अरे सॉरी, आंसर रिवील कर दिया, लेट्स फॉरगेट दैट, आंसर है ही नहीं, हमें हमने देखा ही नहीं आंसर। ठीक है, क्या होगा, P इट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसा स्टेटमेंट यू कैन इंप्लीमेंट
कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यू को लिखता हूँ तो पी को कहाँ पे लिखना पड़ेगा? पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू का लेफ्ट साइड कौन सा आ गया? ये और ये। अच्छा ये कौन सा साइड है? राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ये सर बताओ। ये कौन सा साइड है? ये यू का ये कौन सा साइड होगा अगर यू यहाँ पे फेस कर रहा है? राइट साइड है ना? राइट साइड। यस, दिस इज लेफ्ट साइड। तो यू के लेफ्ट साइड में सेकंड पोजीशन पे पी को बैठाना है। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन, बिठा दिया। चलो, क्यू इज नेबर ऑफ आर एंड एस। आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे आर एंड एस का पोजीशन पता नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। नेबर ऑफ आर एंड एस, ऐसा कोई आता है ना? क्यू इज नेबर ऑफ आर एंड एस, मतलब क्या आर यहाँ पे, क्यू यहाँ पे और एस यहाँ पे, ऐसा आना चाहिए। अभी यहाँ पे तो वो होगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मैंने बोला ना, ये तीन पोजीशन पे तो होगा नहीं, है ना? यहाँ पे कोई रख नहीं सकता मैं। एक दो तीन पोजीशन बाकी है, समझ रहे हो? क्यू को मुझे यस ऐसी सर। पोजीशन पे रखना है जहां पे आर एंड एस उसके साइड में आ जाए। अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये अल्टर हो सकता है। अगली वाली कंडीशन देखते हैं। टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। टी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस है, तो यहाँ पे ही आने वाला है टी, कहीं और नहीं जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन दिस पोजीशन शुड बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। ये अगर यहाँ पे मैं एस रखता हूँ ना, तो एस का ये हो गया लेफ्ट साइड। तो ये पहला पोजीशन या दूसरा पोजीशन, तो यहाँ पे सिंपली आर नहीं आएगा, क्या आएगा? एस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। खत्म, इतना इजी था। हु इज सेटिंग ऑपोजिट टू पी? कौन है? एस। दैट वाज द आंसर। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? ईच एंड एवरी स्टेटमेंट तुम लोगों को ना सर पूरा ऐसे तोड़ ताड़ के देखना है, एंड देन यू रियलाइज कि अरे यहाँ ऐसा था। थोड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे ना, देन थोड़ा इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत लो। प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस की देखो, मैं भी सिखा रहा हूँ। मैंने ऐसे बचपन से कुछ आता नहीं था मुझे। आई स्टडीड फॉर कैट। कैट, कैट क्या होता है? कॉमन एडमिशन टेस्ट। अच्छा, पता है तुम लोगों को? ओके ग्रेट। मुझे लगा कैट माने वही पता होगा। इट्स ओके, नेवर माइंड। सो आई अपीयर्ड फॉर कैट फॉर like at least 2 to 3 times, and I was able to score more than 90 percentage every time because of this practice. Okay, कैट के लिए you need a lot of mock tests to practice. Okay, तो उसकी वजह से आई कैन टीच। मुझे भी मैथ इतना पसंद नहीं है, ट्रस्ट मी, बट ये मजा आता है सॉल्व करने में। whenever you feel sad or when you feel empty doing nothing, you can solve these kind of questions. It will not make you happy, but at least कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगा, दिमाग चलने लगेगा। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसको रेफर करो, इसको रेफर करो सब लोग। ये थोड़ा डायग्राम निकाल लो, अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ग्रेट। किसी को कुछ समझ में नहीं आया है ऐसा कोई है? हाँ जी गाइस, आप हो वहां पे या फिर सो गए? ओके, अब ये देखो, मैं ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ओके, डोंट सेव कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ग्रेट। मैं कुछ ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा। आर यू देयर? एटलीस्ट आंसर मी प्लीज गाइस, मुझे समझ में आना चाहिए। आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट? ग्रेट, प्लीज कीप दैट। ओके, जस्ट यस और नो, यही चाहिए मुझे आपसे। यू डोंट हैव मच टाइम नाउ। ग्रेट। सो ये देखो, क्वांटिटेटिव एबिलिटी ऐसा है कि ना टॉपिक रहता है एलआर में भी, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले थोड़े से कंसेप्ट आ जाएंगे। हाँ, अभी तुम लोगों को ये पता है ये क्या होता है? भाई सॉरी, अरे ये क्या हो गया? आई एम नॉट एबल टू राइट थिंग्स हियर। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? Let me check. Give me a second.
ओके, एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। मेरा नेटवर्क शायद कुछ गलत है, आई नीड टू चेक व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके? Let's see whether we can. Yes, we can right now. Great. What I was sharing, it was this. तो आंसर भी मिल गया आप लोगों को। ठीक। एक सेकंड, समथिंग इज रॉन्ग। और डन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो थोड़ा, क्या है? हम लोग उधर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं होगा सॉल्व की शायद। इन थ्रोइंग फेयर डाइस, फेयर डाइस क्या होता है पता है? डाइस क्या होता है? कैन समवन एक्सप्लेन प्लीज? हाउ मेनी साइड्स आर देयर फॉर अ डाइस? डाइस, देखो लास्ट के 15-20 मिनट्स बचे, आई वांट टू स्पीक अप। कम ऑन। 6 साइड। 6 साइड्स, इतना टाइम लगता है गाइस बताने के लिए? इज इट दैट हार्ड? नो प्रॉब्लम। तो इन्होंने पूछा है, इन थ्रोइंग फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3? सो तुम्हें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ना समझा देता हूँ, एकदम इजी है। ठीक है? Where is eraser? So we can select thing like this, we can delete that. That's great. अच्छा, मैं ना शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन वापस से। ग्रेट। सो फेयर डाइस तो ऐसे रहता है ना, अरे ऐसे कुछ तो दिखता है वो। आई ट्राई टू ड्रॉ दैट, ओके, थोड़ा 3D व्यू में, so it will be easy for you to understand। ऐसे दिखता है। यहाँ पे एक रहेगा, ठीक है? यहाँ पे 3 रहेंगे, ऐसे। यहाँ पे 4 रहेंगे, राइट? अभी इस डाइस पे ना इतने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं ना लोग। एक ऐसा रहता है कि यू विल गेट अ डाइसेक्शन ऑफ डाइस, ओके? डाइसेक्शन मतलब वो कैसे देंगे, एक ऐसा फटा हुआ पार्ट देंगे, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये ऊपर ये है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर वन मोर साइड। और यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, फिर 1 2, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी एक आएगा, सॉरी 6 साइड रहते हैं ना। ठीक है? तो हर एक इस पे वो बोलते हैं, अगर हम लोगों ने ये जो डाइस है ना, खोला हुआ डाइस अगर ज्वाइन करके ऐसा बनाया, ठीक है, और ये उसका एक साइड है ऐसे, तो बताना है कि 1 के ऑपोजिट में कौन सा साइड आता है ना। तो इसके लिए इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, और यहाँ पे तुम्हें फोकस करना होता है। अभी 1 यहाँ पे, 1 अगर मैं ऐसे उसको फोल्ड कर दूं यहाँ पे, ये साइड में ऐसे, इनर साइड में इसको, इनर साइड में इसको, इनर साइड में, तो कैसे बनेगा थोड़ा देख सकते हैं? ऊपर से अगर देखे तो ये ऐसे होगा, देखो ये वाला साइड है 1 का साइड, मतलब अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूंगा तो ये पूरा फेस जो है ना नीचे, मुझे यहाँ पे ऐसे 1 दिखेगा, ओके? ये वाला साइड है, ये वाला है, ये वाला साइड है, अगर इसको बंद कर दिया और ये खुला ही रखा है मैंने, ये तो ऐसे दिखेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव टू इमेजिन थिंग्स, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर लर्निंग राइट नाउ। व्हाट वी नीड इज प्रोबेबिलिटी। इसका एक जस्ट बता दिया मैंने, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो डाइस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो सब देखेंगे। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, इट्स सिंपल, इन सिंपल वर्ड, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस, और इट्स इट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर। कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको। मतलब अगर मैं कॉइन होता है, कॉइन, राइट, यहाँ पे होता है ऐसे 1 रुपी लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे लिखा है, ऐसे अनाज के ये होते हैं, और ये होता है
राजमुद्रा, ये सॉरी, दिस विल बी आर। तो ये बताओ, हेड्स एंड टेल्स का तुम्हें पता होगा, राइट? विच साइड इज हेड? इफ आई टॉस दिस कॉइन, ओके, इफ आई टॉस दिस कॉइन, just tell me what is the probability of getting heads? क्या चांसेस है हेड्स लाने के? चांसेस क्या है? परसेंटेज में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? अब तक बताया भी नहीं मैंने कुछ। हेड्स आने के चांसेस कितने होते हैं? 50%। इधर हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा, ठीक है? तो 50%। लेकिन प्रोबेबिलिटी में लिखते कैसे पता है? प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन वन एंड, सॉरी, 0 and 1। तो इसके बीच में, तो 0 रिप्रेजेंट 0 प्रोबेबिलिटी, 1 रिप्रेजेंट्स 100% प्रोबेबिलिटी। तो 50% प्रोबेबिलिटी कैसे दिखाएंगे? 0.5 से। परफेक्ट। सो व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इफ वी टॉस वन कॉइन? वाज 0.5 या फिर 1/2। ये थोड़ा समझने में इजी है। 1/2 कैसे? ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। प्रोबेबिलिटी में इसको बोलते हैं टोटल आउटकम, ओके, और इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। सिंपल भाषा में अगर बोलूं मैं, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास कितने आउटकम्स होते हैं? क्या हो सकता है? हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है। ये दो ही आउटकम है। तो मैं इनको यहाँ पे नीचे लिख दिया कितने आउटकम्स आने वाले हैं टोटल। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए हेड्स, राइट? हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, तो ये फेवरेबल आउटकम ये हो गया। मुझे एक ही इवेंट का ऑकरेंस चाहिए, मुझे दोनों नहीं चाहिए, राइट? एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो डाइस का होता है, ठीक है? डाइस, डाइस को होते हैं 6 बाजू, राइट? डाइस को होते हैं 6 बाजू। तो नंबर ऑफ, अगर एक फेयर डाइस में अगर रोल करता हूं, मतलब उसे फेंकता हूं, तो कोई ना कोई तो नंबर इस फेस पे आने वाला है, राइट? आउट ऑफ कितने? देर आर 6 पॉसिबिलिटीज। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6। ये हो गया उसका टोटल आउटकम्स। कितने हो सकते हैं? 6। उसमें से मुझे क्या चाहिए? मैं पूछता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया उन लोगों ने कि इन थ्रोइंग अ फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन द फेस? यहाँ पे ऐसे 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर मैं, मेरे पास 6 आउटकम्स है, उसमें से एक ही आउटकम चाहिए, तो आई जस्ट राइट 1/6, है ना? अगर मैं ऐसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 3 ऑन द फेस, तो क्या होंगे? मुझे दो आउटकम्स चाहिए ना, ये या फिर ये। तो मैं क्या लिखूंगा? 2/6 विच इज 1/3। मतलब 3 में से एक बार अगर मैं ऐसे डाइस फेंकता हूं तो 3 में से एक बार 2 या फिर 3 आने ही वाला है। दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज। तो तुम्हें सिंपल से आंसर क्या लिखना है? यहाँ पे देखो, मैं वापस से रीशेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जस्ट मेक श्योर यू कैन सी दैट। यहाँ पे आंसर क्या करना है वो समझ लो। ये देखो, इन थ्रोइंग अ फेयर डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, नंबर 3 ऑन द फेस। टोटल आउटकम कितना है? 6 का है, लेकिन चाहिए कितना? एक ही चाहिए, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी, राइट? 1/6। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी, 1/6। एक और देखो, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 विद एन ऑर्डिनरी डाइस हुज फेसेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6? सेम ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4? ग्रेटर देन 4 कितने होते हैं? 5 and 6। तो दो नंबर्स की प्रोबेबिलिटी देखनी है आउट ऑफ 6 नंबर्स। 2/6 रिड्यूस करोगे तो होगा 1/3। इसको नहीं समझ रहा है ये? अभी बोलो या फिर आई स्टॉप। हाँ गाइस? आरती, विवेक, आरती 2, संचिता, वन समझ वन में आ रहा है ना? मतलब आई एम नॉट आस्किंग आंसर्स, आई एम जस्ट आस्किंग समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। समझ रहा है? इट्स नॉट दैट हार्ड। तुम्हें क्या करना है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, मतलब अगर मैं देखो, कार्ड्स, कार्ड्स का पता है कार्ड्स क्या होते हैं? आई जस्ट गिव यू, थोड़ा इस पे ध्यान दो। यस, थोड़ा इस पे ध्यान दो, ओके? मैं जो बोल रहा हूँ अभी, दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है? प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा। यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सीईटी टोटल। इतना भी पढ़ोगे ना जितना पढ़ाया है मैंने, पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा स्कोर कर लोगे, पास नहीं, ठीक है? तो लेट्स फोकस। कार्ड का डेक पता है क्या होता है? कम ऑन आंसर मी नाउ। पत्ते खेले हो? पत्ते कभी, लाइक बचपन में वगैरह? कितने कार्ड होते हैं? 52, 52। राइट? 4 सेट होते हैं, कौन से कौन से? एक रहता है
हार्ट्स, 26 spade and राइट। 26 cards. अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको, इसके नाम बताना इंग्लिश में, बट ये हिंदी वाले अपने घर वाले नाम मत बताना इनके, ठीक है? Spade, heart अच्छा, and पहले पहले से बताओ ये क्या है। heart. ओके, हार्ट्स, ग्रेट। ये क्या है? Spade. स्पेड्स, दैट्स करेक्ट। ये क्या है? क्लब। No, sir. और ये I होता don't है know. डायमंड, Hmm. राइट। हम लोग अजीब अजीब नाम रखते हैं, आई नो, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स एज वेल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कितने कार्ड्स रहते हैं पता है मतलब? ठीक है, ऐसे नहीं जाते हम लोग, Uh, क्या करते हैं, वन बाय वन जाते हैं, वन बाय वन, ठीक है। 13, 13. कार्ड्स कौन से टाइप के रहते हैं? इट विल स्टार्ट फ्रॉम एस टू किंग। इसके बीच में कितने Hmm. कार्ड्स रहेंगे? 30। और ऐसे 13 कार्ड्स हर एक सेट के रहते हैं, राइट। Hmm. इसका 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 टोटल हो गए 52। तो वो लोग पूछते क्या पता है, क्वेश्चन सेम आएगा। टोटल आउटकम्स है कितने? 52 ऑब्वियसली। मुझे नंबर सेट जो बनता है मेरा, अगर मैं 52 कार्ड्स में से एक रैंडम पत्ता उठाता हूँ, रैंडम पत्ता, तो वो रैंडम पत्ते का या फिर रैंडम कार्ड का प्रोबेबिलिटी होता है 1/52। ओके। लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, अगर मैं इन कार्ड्स में से मैं, मुझे चाहिए एक किंग, किंग वाला कार्ड, कोई भी चलेगा, हार्ट्स, स्पेड्स, क्लब और डायमंड, कोई भी चलेगा, लेकिन किंग चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इफ आई ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स? तो देखो अपने पास टोटल किंग्स कितने हैं? 4 किंग्स हैं, लेकिन निकालने कितने में से है? 52 में से। ये हो गया प्रोबेबिलिटी, खत्म। इसको थोड़ा सा रिडक्शन फॉर्म में लिखो तो 1 बाय कितना आएगा देखो, 13 आई गेस, 1/13। मतलब हर एक 13 कार्ड के सेट में एक किंग तो है ना? वही तो दिखा है, ये देखो। कोई भी क्वेश्चन निकाल लो, कोई भी क्वेश्चन इतना इजीली हो जाएगा सॉल्व। देखो अभी कोई भी क्वेश्चन निकाल लो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स। मैं अगर एक पत्ता निकालता हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड पत्ता रेड निकलेगा? रेड कार्ड कौन से होते हैं? ये हार्ट और डायमंड। ये दोनों ब्लैक रहते हैं ना, क्लब और स्पेड्स, ये दो रेड रहते हैं, हार्ट्स एंड डायमंड। टोटल कार्ड्स कितने हैं हार्ट्स एंड डायमंड्स के? देख लो, इसके 13 कार्ड्स रहेंगे, इसके 13 कार्ड्स रहेंगे, टोटल हो गए 26। 26 आउट ऑफ 52 कितना होता है? 1/2। मतलब मैं 52 कार्ड्स में से दो पत्ते निकालूंगा ना, तो एक प्रोबेबिलिटी कि उसमें से एक पत्ता रेड निकलेगा। समझ रहे हो? ये किसको नहीं समझा बताओ, किसको नहीं समझा? देखो, we don't have much time now. I believe I'll be ending the session right away. But if you're really interested, to learn more apart from CET, मैं तो बताऊंगा कि you must be focused on CET. You are going to go for BCA and BBA. मैं 2-3 टिप्स दूंगा करने के लिए। What you have to do is मॉक टेस्ट बहुत सारे सॉल्व करो, यू नो मॉक टेस्ट में बहुत सारे सॉल्व करने। क्यों पता है? देखो जीके का तो आई एम नॉट श्योर वो कैसे आते हैं, बहुत सारे हजारों क्वेश्चन से कोई भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हार्ड नहीं होगा, तुम्हारे कैपेबिलिटी जैसा ही होगा, ठीक है। एलआर का आई एम प्रीटी श्योर कौन से 40 क्वेश्चन में से कौन से ये इसमें 15 आएगा, इंग्लिश इसमें 15, और क्या बचता है? और क्या बचता है बताओ, कंप्यूटर। क्या होगा? इन फाइल किधर लग दिया हुआ, आई एम नॉट श्योर।
Okay, never mind. There. So I want you to practice so many mock tests. Okay, जितने mock test मिल सके कर लो. ठीक है, चारों के चारों sections में से. दूसरा part है when it comes to English you need to read a lot. Okay, reading थोड़ा अच्छा रखो. 15 ही question है, ज्यादा नहीं है. वो हो गया और 30 questions के ना उसके नेक्स्ट. ठीक है. नाउ ये हो गया इसके लिए पार्ट. इफ यू गाइस आर इनटू मैथमेटिक्स अ लॉट, तुम लोगों को ज्यादा कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देना है, यू कैन कनेक्ट विद मी, नो प्रॉब्लम. ओके, आई हैव अ लिंक्डइन अकाउंट, यू कैन मैसेज मी थ्रू दैट. आई हैव इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल. ऑलराइट, यू कैन जस्ट इफ यू वांट टू लर्न मोर. सेकेंड चीज होती है, वेर एवर आई बिलीव यू विल बी गोइंग टू द कॉलेज, पुणे मुंबई कोई भी कॉलेज में जाओगे, आई डोंट नो, आई विल बी कमिंग देयर फॉर ट्रेन, to train you people, because I have covered more than, I have covered all of the colleges in Pune for aptitude and soft skills sessions. All right. So if you're lucky, if I'm lucky, I'll get to meet you guys. But I want you to practice more. Practice is the only key. जितना अच्छा score करोगे, you'll get the chance. चलो. Any questions? Sir, I have a question. Yeah, please. Who is that? Sir, I'm Vivek. Yeah, Vivek, tell me. सर जे तुम्ही आम्हाला प्रॅक्टिस करवताय, जे काही हा. बी तुम्ही पीक बाय क्विज मध्ये मधून शिकवताय की जे 2025 चे जे बीबीए बीसीए बुक असतं त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस करवताय तुम्ही? मी कशातूनच प्रॅक्टिस करत नाही. सी एक कसं असतं, सीईटी कुठली असेल ना, त्यांचा एक पॅटर्न आहे. ओके, नाव आता तुम्ही बीसीए साठी प्रिपेअर करताय, बीसीएचा एक सिम्पल पॅटर्न आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये मॅथमॅटिक्स स्कोअर जास्त येत नाही, बट इंग्लिश लॉजिकल रिजनिंग हे इम्पॉर्टंट आहे. आता वेन यू गो फॉर ऍप्टिट्यूड फॉर कॉर्पोरेट प्लेसमेंट, आता तुम्ही जेव्हा बीसीए वगैरे कराल ना, तेव्हा तुम्हाला हे समजेल की थर्ड इयरला यू आर सपोज टू गो फॉर प्लेसमेंट. प्लेसमेंटला आहे ना ऍप्टिट्यूड होते. एक्झाम म्हणजे कुठली एक्झाम असते ती, इंटरव्ह्यूला जायच्या आधी एक फिल्टरिंग टेस्ट होते, त्याच्यामध्ये पण सेम सिलेबस आहे, बाकी काही वेगळं नाहीये. फक्त त्यामुळे थोडं मॅथमॅटिक्स ऍड होईल 10th पर्यंतचं. आता वेन यू गो बियॉन्ड दॅट, तुला जर एमसीए एमबीए करायचं असेल, वेगवेगळ्या एंट्रन्स एक्झाम्स आहेत, सीईटीज आहेत, कॅट आहे, भरपूर कॉलेजचे सेपरेट एक्झाम्स आहेत, त्यांचाही सिलेबस सेम आहे, फक्त डेप्थ ऑफ अंडरस्टँडिंग इज डिफरंट. बट सीईटी कुठलीही असेल ना, त्यांचा हा प्रॉपर सिलेबस असतो, हा एवढाच. मार्किंग सिस्टम वेगवेगळी असल्यामुळे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होतील, पण पॅटर्न हाच आहे. सो इफ यू प्रिपेअर फॉर वन कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, तर तुला आयडिया येऊन जाईल की बाबा पुढच्या एक्झाम मध्ये काय असू शकतं. सो मी कुठल्या बुकमध्ये वगैरे शिकवत नाहीये. इफ यू हॅव अ बुक टू प्रॉपर तुला प्रॅक्टिस करण्यासाठी तुझ्याकडे बुक असेल, दॅट इज अ रिअली गुड थिंग. ठीक आहे, मला फक्त आज पॅटर्न कव्हर करून घ्यायचा होता की बाबा हे टाईपचे क्वेश्चन्स येतात, सो यू हॅव टू डील विथ दॅट. आता होतं कसं, वी डोंट हॅव मच टाइम, आय अंडरस्टँड, 2 तासामध्ये एवढं सगळं होत नाही. दॅट्स वाय आय कॅन गिव्ह यू दिस थिंग. वेट, यू कॅन सी माय स्क्रीन राईट. तुमचं Yes, sir. लिंक्डइन अकाउंट तर नसणार आहे. तुमचं लिंक्डइन अकाउंट आहे, नसेल आय गेस. तुमचं लिंक्डइन अकाउंट नसणार आहे, दॅट इज दी. आम्हाला ठीक आहे. आता आम्हाला जॉब थोडी करायचं सर. अरे तसं नाही ना, आता जॉब नाही करायचं, मग अभ्यास तर करतोस ना तू. अभ्यास तर इम्पॉर्टंट आहे, राईट. ठीक आहे, लिंक्डइन एकदा बघून घ्या काय असतं रे, फ्री टाइम भेटेल तेव्हा, नो प्रॉब्लेम. सो व्हॉट आय कॅन गिव्ह यू इज, ओके, यू कॅन पिंग मी. थोडासा मोठा आहे हा मेल आयडी, ईमेल आयडी तर आहे. हो सर. हा, ग्रेट. सो याच्यावरती तुम्ही पिंग करू शकता इफ यू हॅव एनी क्वेरी. gmail.com, फ्रीलान्सर, सॉरी इथं डबल ई आहे, ठीक आहे, freelancer.career.catalyst@gmail.com, याच्यावरती तुम्ही मला मेल करू शकता इफ यू हॅव एनी क्वेरी. ठीक आहे. ओके सर. और एल्स तुम्ही लोक कशावरती आहे हे मला माहिती आहे, सो आय गिव्ह यू दिस ॲज वेल. यू कॅन सर्च दिस अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वॉन्ट. ठीक आहे, _D_XPLORER. ठीक आहे, यू कॅन फॉलो. तिथेही क्वेश्चन विचारला चालेल. मोस्टली मी खूप कमी असतो इंस्टाग्राम वरती, सो तुम्हाला रिप्लाय थोडा लेट भेटेल. इफ यू मेल मी, तुम्हाला लगेच रिप्लाय मिळेल. ओके, इफ यू नीड एनी फर्दर गायडन्स फॉर क्वेश्चन्स और मे बी प्रॅक्टिस कशी करायची. ठीक आहे, चलो. ऑल राईट. सो अजून काही क्वेश्चन्स? ठीक आहे ना.
Okay then, Pushparaj sir, I'm done with my training. If येस सर, थँक्यू व्हेरी मच. further, sure, further guidance का हवं असेल तर ना, let me know please. ठीक आहे? नक्की सर, नक्की. Yes, चलो. Thank you so much guys. ओके, थँक्यू सर, बाय. Yeah, bye.